বন্ধুগণ, আমরা আমাদের সমাবেশ শুরু করব। যারা পশ্চিম দিকে বাগানবাড়ির দিকে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সমস্ত বন্ধুদের অনুরোধ জানাবো আপনারা গেট ছেড়ে দাঁড়ান। বাইরে অনেক লোক এখন আছে, তারা ভেতরে ঢুকতে পারছেন না। আপনারা গেটটা ফাঁকা করে দিন। যারা মিছিল আরো আসছে তাদেরকে এই মাঠের ভেতরে ঢুকে দিন। বন্ধুগণ, আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী 23তম ত্রিপুরাজ্য সংগঠন উপলক্ষে আজকে আমাদের এই প্রকাশ্য সমাবেশ। আমি এই সমাবেশে সমাবেশ করার জন্য আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য কংগ্রেস অভিজ্ঞতার নাম প্রস্তাব করছি। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। আবারও অনুরোধ করব, বাইরে গেটটা ছেড়ে দিন, কারণ লোক ঢুকছে। সামনে কিছু জায়গা আছে, এখানে এসে বসতে পারবে। সংগ্রামী মা বোনেরা, বন্ধুগণ, অভিভাবক মন্ডলী, এলাকাবাসী, আগরতলা শহরের জনগণ যারা এখানে সমবেত হয়েছেন, সারা রাজ্য থেকে যারা এসেছেন, বিভিন্ন জেলা থেকে, প্রথমেই বক্তব্য রাখবেন আজকের সভার সভাপতি কমরেড অভয় দেববর্মা। সংগ্রামী বন্ধুগণ, ইতিমধ্যে আমাদের প্রকাশ্য সমাবেশের সম্পর্কে আমাদের পার্টি ত্রিপুরা কমিটির সম্পাদক শুনেছে। আমি প্রথমে আপনাদের যারা সমস্ত সন্ত্রাস, প্রতিবন্ধকতা, এই সমস্ত অপেক্ষা করে আজকে এই সমাবেশে তারা সমস্ত হয়েছেন, প্রথমে আপনাদের সকলকে পার্টির রাজ্য কমিটির তরফ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আগামী কাল 10:30 থেকে আমাদের পার্টির ত্রিপুরাজ্য কমিটির 23তম রাজ্য সম্মেলন শুরু হবে। মূল সময় কাজ শুরু হবে। এই উপলক্ষে আজকের সময় এই সময়তে যাদের আপন জনসাধারণ যারা নানাভাবে বঞ্চিত অথবা নির্ধারিত হয়েছেন, যারা এই রাজ্যে গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য যারা ভাবছেন, তারা যাতে এই সমাবেশে যোগদান না করতে পারে, তার জন্য শাসক দল অথবা বিরোধী দল নানা কায়দায় জনগণের উপর ভিত্তি সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজকে এই ধরনের সন্ত্রাস বড় আজকে কিন্তু এই জনজমায়েত হয়েছে। এটা বুঝতে মানুষের মনে কত ক্ষোভ, মানুষের অঙ্গীকার, যত কঠিন আক্রমণে আসুক না কেন, যদি জীবন দিতে হয় তো দেব, এই ভাবনা থেকে আজকে সমস্ত মানুষ আজকে কমিউনিস্ট পার্টির
পার্টি সবথেকে রক্ষা পায় না। আজকে যে প্রমাণ গত ৭ বছর ধরে এই রাজ্যে ভোট সরকার ক্ষমতায় এসে যে সন্ত্রাস করে রাজ্যকে গণতন্ত্র হত্যা করেছে, ভারতবর্ষের পৃথিবীতে গণতন্ত্র হত্যা, এর গণতন্ত্র নেই। ওরা বড় বড় গণতন্ত্রের কথা বলে, গণতন্ত্র মানে একদলীয় শাসনের ব্যবস্থা, তার গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের আরো বেশি স্তরে তার গণতন্ত্র বলে। এই গণতন্ত্র গত ৩ বছর আমাদের কি হবে? রাজ্যের মানুষকে মুখ ভঙ্গ করা হয়েছে, মানুষের মুখ ভঙ্গ করা যায়। গণতন্ত্রের পায়ের নিচে মাটি দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই তাদের গণতন্ত্রের মধ্যে এই গণতন্ত্রে শুধু বামপন্থীর উপরে আক্রমণ হচ্ছে এমন নয়, সমস্ত সাধারণ মানুষের আক্রান্ত হচ্ছে। এমন তো বিজেপির সমর্থক যারা দলে আছে তারাও রক্ষা পায়। সালগার রসুল্লাহ এইভাবে রাজ্যের কংগ্রেসের দল, এই জোটের দল, যারা জনগণের কাজটা করে তাদের উপর অপরাধ করছে, এই দলের যে চলে যেতে হবে, এদেরও নিস্তার করা হয়ে যাবে। কি হবে তারা ভুলে সবাই কথা বলেছিল, একটা কাজ করবে না, বেকারের চাকরি হলো, গ্রামের মানুষের কাজ হলো, না উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো, যাই করছে হয়েছিল তাই নতুন নতুন বাড়ি উদ্বোধন করছে ওরা। এই কাজে এই ৩.৫ বছরের কাজ করে নতুন কাজ করে কোথায়? কোনো কাজ নেই। লোকে বড় বড় কথা বলে, প্রতিশ্রুতি কথা বলে, একটা কাজ ওরা করে এমন লাগে যে কাজ হয়েছে, কাজ চলে যাবে, কাজ করতে পারে না। এখন তো লোককে রাজনীতি করে লোককে করে চলে পত্রিকা উঠছে, প্রতিনিয়ত এই নয় বাইরে কিছু করে নিজের মনে করার কারণে খালি বন্ধুগণ, ভয়ের কোনো কারণ নেই। এটাই শেষ কথা না, সন্ত্রাস শেষ কথা বলা, জনগণ বলে শেষ কথা। আমাদের সংগ্রামে না আমাদের লড়াই করে তৈরি হন, সুখে রক্ত দিয়ে এমন করে গরিব মানুষের জন্য এই অধিকার নিয়ে আপনার সমাজের আমাদের তৈরি হবে। আপনার পুত্র তিনি জনসভা ফাইন্যান্স হয়, নানা রকম ভাড়া ভাড়া যাবো ওই মফা আইপিএফে ভোগের সময় বিজেপি আইপিএফ আপনার ফেরবান উপরাজনী বাগায় কত কাম করতে টাকা কোন কাম দেখাই কোন না ত্রিপুরায় না প্রজাতি বেকারি সফল কাম অন্য প্রজাতি এলাকা সামনে ব্যবস্থা কোন কাম কোন ফেমান করে আমার বাবা আইপিএফ শেষ পর্যন্ত ভারত নিজ অপেক্ষায় এখন ভারত ধরা বিচ্ছিন্ন না হয়ে যাবে। তাও মানুষকে সিরানি করে না, তাও করে অপেক্ষা বেকার ত্রিপুরার অদ্ভুত কর্ম এক ত্রিপুরার শুধু খেলিয়া তারপর বেকার ত্রিপুরার খেলায় আমি রক্ত দিলাম 28 টাকা বাপন লাগি কোন পূজা দিবে কোন কাম দেয়া আরে ভাই
বাকি উপজাতি রাজধানীর সমস্ত অংশের বড়কায় প্রধান উপমা করতে পারেনি কাগজ বড় গন্তল দিয়ে যাব বড় উপজাতির সর্বনাশ ছিল বলে না যাবো হয়তো বাংলা তো বিভিন্ন কিসে গেল বড় এই সমস্ত দল করে গেল এর ভিতরে ইতিহাস আছে বামফ্রন্ট খাইয়া যায় উপজাতির কর্তন রাজ্য স্বীকৃত মানে দাঁড়িয়ে হলো অথবা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেব কোনটা নিগাবে কিন্তু কখন সংবিধান পরিবর্তন করা অধিক 125 জন সংবিধান সংশোধন করার কথা বলো পার্লামেন্ট অনেক আউট পর্যন্ত আমার পাঁচ দিনের জব মানে ডিস্ট্রিক্ট খাই নিয়ে উপজাতির এপিসিরা তেও ক্ষমতা মাত্র ভিডিও বানাইয়া আর আগেও শুনলাম আমরা জীবনে কোনো এসি কাউন্সিল আমরা ভাই কংগ্রেস তো হয়েছে না ত্রিপুরা হয়েছে এসি মতো মামলা এই দুটো মামলা চলতে থাকে খালি মাঠে শুট করতে থাকে আমি মনে বলবো তো অফিস মামলা একই কায়দা উপজাতির যাবে কাটবে না যাবে বাদে নেই আমরা বলে আর খানা কায়দায় এই সমস্ত ঘটনা বড় কাজ হবে যাই হোক তারপর এই জনসভা তো ভক্তরা আন্তর্জাতিক সেবানিয়া তিনি পরিবহনের দুজন সদস্য তিনজন সদস্য এবং সাধারণ সম্পাদক পার্টি কংগ্রেস সিনিয়র মিশরি কংগ্রেস প্রকাশ করা কংগ্রেস মানিক সরকার বিরোধী নেতা বিধায়কনে বড়তম রাজনৈতিক সম্পাদক বড়তম পারেন সিংহ তাদের এরা ওনারা বলেন আরো অনেক কথা বলো তাদের সময় মিশিয়ে আমি আপনাদের সামনে আর বক্তব্য রাখতে পারবো না আশা করে আমাদের এই সমাবেশ থেকে আমাদের গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম তীব্র আপনি গড়ে তুলবেন এই কথাগুলো বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে অভিনন্দন ইনকলাব দিন মাননীয় সভাপতির অনুমতিক্রমে আমি বলছি এখন বক্তব্য রাখবেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড জিতেন্দ্র চৌধুরী তাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই বিশাল এবং মহতি সমাবেশের জাতীয় সভাপতি মঞ্চে আসীন আছেন আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর অন্যতম সদস্য কংগ্রেস মানিক সরকার আরো বক্তব্য রাখার জন্য এখানে আসছেন আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস সীতারাম ইয়েচুরি ফরিদপুর অন্যতম সদস্য কংগ্রেস প্রকাশ কারা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যগণ এবং আপনারা যারা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারো বাধা বিপত্তি এবং ঝুঁকি নিয়ে এই সমাবেশকে সফল করার জন্য এখানে হাজির হয়েছেন এবং আপনারা এখানে যতজন আছেন তার থেকে আরো 50 গুণের বেশি তার থেকে হয়তো বেশি হবে বিভিন্ন চ্যানেলে সোশ্যাল মিডিয়াতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের বক্তব্য শুনছেন মাঠে উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং আপনাদের সকলকে আমি আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির তরফ থেকে এবং আমার নিজের তরফ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধুরা আমরা জানি
যদিও এই সমাবেশের আয়োজক আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, কিন্তু আজকের এই সমাবেশে শুধুমাত্র যারা আমাদের পার্টির সমর্থক স্বল্প ধর্মী তারা আসেননি। যদিও এই সমাবেশ আমাদের পার্টি রাজ্য সম্মেলনকে উপলক্ষ করে, কিন্তু রাজ্যের মধ্যে আজকের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, মানুষের জীবনে যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে, সেই অন্ধকার থেকে রাজ্যকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই সমাবেশে যারা এই রাজ্যকে ভালোবাসেন, যারা গণতন্ত্রের পক্ষে, শান্তির পক্ষে, নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে, তারাও অসংখ্য লোক এখানে এসেছেন। আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, পুলিশ জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আমাদের এই যে রাজ্য সম্মেলন প্রতি 3 বছর অন্তর আমরা সংগঠিত করে থাকি, কিন্তু এটা শুধু সম্মেলনকে উপলক্ষ করে সমাবেশের মধ্যে আজকে আমাদের ভাবনা চিন্তা, আগামী দিনের যে লড়াইয়ের শপথ, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গত 37 মাস ধরে এই ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র নেই, আইনের শাসন নেই, মামলাদের ইজ্জত সংগ্রাম নেই, এ রাজ্যের মধ্যে বেকারদের কাজ নেই, গ্রামে শহরে কোথাও মানুষের নিরাপত্তা নেই। এই রাজ্যটাকে বিজেপি আইপিএফটি জোট এটাকে শ্মশানে পরিণত করেছে। গত 47 মাসে এই রাজ্যে পরিণত হয়েছে কিভাবে মানুষের গণতন্ত্র লুট করা যায়, ভোট লুট করা যায়, অর্জিত অধিকার হরণ করা যায়, কিভাবে এ রাজ্যে এ রাজ্যের মানুষ লড়াই করে যে সম্পদ তৈরি করেছে, মানব সম্পদ, সাংস্কৃতিক সম্পদ, অন্যান্য সম্পদ, গত 47 মাসে ত্রিপুরাতে এই বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এটাকে ভেঙে চড়ে তছনছ করে এই রাজ্য থেকে লুট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে থেকে সমস্ত এজেন্ডা থেকে নিয়ে করছে। আমরা সেই জায়গায় চাই কিভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের কাজের অধিকার ফিরে নিয়েছে, এই রাজ্যকে আবার পুনর্বার সে আমাদের এই ঐতিহ্যের সাথে আমরা মেলাতে পারি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গত 47 মাসে আমাদের 22 জন প্রথম সাহেব কর্মী তার শরীরে মৃত্যুবরণ করেছে। শত শত শুধু আমাদের কর্মী সমর্থক না, যারা গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেন, শাসক দলের ব্যাপারেও তারা শহীদভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তারা শুধু সাধারণ মানুষ না, কৃষক, শ্রমিক, 1 বছর 3 বছর না, তারা সরকারি কর্মচারী আছেন, উর্দি পড়া পুলিশ আছেন, ডাক্তার, প্রফেসর, উকিল, এও কোন অংশের লোক গত 47 মাসের আক্রমণ থেকে তারা রক্ষা পান। আগামী দিন আমাদের পার্টি এই সম্মেলনগুলোতে, জেলা সম্মেলনগুলোতে আমরা কিভাবে এই আক্রান্ত মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, রক্তাক্ত মানুষ তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারি, আমরা সে আলোচনা করেছে। আগামীকাল এবং পরশু আমাদের রাজ্য সম্মেলন হবে, সেখানেও হবে আগামী দিন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমাদের রোডম্যাপ কি হবে। বন্ধুরা, আজকে এই মেয়ে আলোকে
আমাদের যে কোন জিনিসটা আক্রান্ত না, সবচেয়ে বড় আক্রান্ত আমাদের যৌবন, আমাদের যুব সমাজ। গত 47 মাস যারা ঘরে ঘরে চাকরি লাগেন, প্রথম বছরে 50,000 এবং পরের 4 বছরে মিলিয়ে 7 লক্ষ চাকরি লেভেলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত 47 মাস কিছুই করেনি। কি করেছে? কিছু যুবককে তাদের ক্ষুধার জ্বালা, বেকারত্বের জ্বালা, এই সুযোগ নিয়ে তাদেরকে গুন্ডা, সমাজ বিরোধী, ভাইয়ের মাথায়, সহকর্মীর মাথায়, সহপাঠীর মাথায়, প্রতিবেশীর ভাড়া গুঞ্জনের জন্য তাদের চরিত্র নষ্ট করেছেন। এই নয় যে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধুমাত্র বিরোধী দল বা সিপিআইএম তাদের ক্ষতি করেছে, আরো বেশি ক্ষতি করেছে, সমূহ ক্ষতি করেছে আজকে বিজেপি দলের সাথে যে সমস্ত যুব বন্ধু আছেন তাদের হাতে মাদক, তাদের হাতে লাঠি, তাদের হাতে মদ তুলে দিয়ে এরা যে প্রজন্মকে, জেনারেশনকে শেষ করেছে, তাদেরকে চুকিদার বানিয়েছে। গত 47 মাসে কতিপয় যে তাদের নেতা অন্যরা যে লুট করছে, সে লুটের সামগ্রী পাহারা দেওয়ার জন্য চুকিদার বানিয়েছে। আমরা তাদের কাছে আহ্বান জানাবো, বন্ধু আপনি ভাবুন, আমাদের এই জনসভাকে কেন্দ্র করে আমরা যখন প্রচার করছিলাম, গত 1 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে সনাতন সরকার আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়নি। গতকাল সন্ধ্যাতেও অভয়নগরে, জিবি এলাকাতে, রামনগরে বাড়ি বাড়ি হুমকি হয়েছে, বাড়ি ভাঙা হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন মহকুমাতে যারা বাস দিয়েছেন, গাড়ি দিয়েছেন, হুমকির মুখে এদের গাড়ি বাতিল করতে বাধ্য করিয়েছে। আজকের দক্ষিণের রেলওয়ে স্টেশনগুলোতে সেখানেও আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। মানুষকে উঠতে পারেনি, উঠা যায় না। মানুষ যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, তাদেরকে আটকে রাখা যায় না। এই জন্য শাসক দলকে বলবো, নিশ্চয়ই শাসক দলের নেতারা আমাদের সমাজে দেখছেন, তারা শুনছে, তাদেরকে বলবো আপনারা হয়তো কয়েক হাজার লোককে বাধা দিয়ে আসছে, এখানে আসতে তারা পারেননি। কিন্তু আপনারা যতজন লোককে বাধা দিয়েছেন, তার 100 গুণ মানুষ তার ঘরে বসে শুনছে, তারা ঘরে বসে শুনছেন। এবং তারা শুধু সিপিআইএমের সমর্থক না, তারা শুধু বিজেপি বিরোধী না। বিজেপি নেতাদেরকে বলবো, বিজেপি দলের ভেতরে যারা আছেন আপনারা তারাও আজকে শুনছেন আগামী দিনের পথ কি, আগামী দিনের মিশন কি হবে, আগামী দিনের সিদ্ধান্ত কি হবে। বন্ধুরা, এই যে যুব সমাজের কথা বলছি, কদিন আগেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে আসলেন। ত্রিপুরাকে নাকি গত 47 মাসে তার আগে নাকি উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত ছিল, রুকাওয়াট ছিল, এখন নাকি খুলে দিয়েছেন। আপনারা 10,000 এসেছে, আপনি পেয়েছেন। গত 47 মাসে 15,000 কর্মচারী অবসরে চলে গেছেন। এটা শূন্য পদ আছে 25,000 পদ, আরো অন্যান্য ভাবে আছে, তো আছে, এটা শূন্য। কি করেছেন তার বিনিময়ে? যুবকদের জন্য আপনারা কাজ শুরু করতে পারেননি। কিন্তু ওই রাজস্থানের কোন একটা 3 নম্বর হিন্দি পত্রিকা
একজন কলমসি, তার থেকে বহু ট্যালেন্টেড সাংবাদিক আমাদের যদি সংবাদ সংবাদ বলাম আজকের পরিয়া দেশের কথা এবং বিভিন্ন আছে তাদের সেই 3 নম্বর পত্রিকা সাধারণ একজন পত্রিকা কোন ইন্টারভিউ ছাড়া লক্ষাধিক টাকার মাসুল হয় তার সাথে গাড়ি বাড়ি হেলিকপ্টার পরিবার নিয়ে বলে বেড়ান আর সে একটি ভবনে বসে পত্রিকার সম্পাদককে সুযোগ দিলেন এইভাবে বিক্রিয়া লিখতে হবে চ্যানেলের মালিককে বলেন এইভাবে খবর করতে হবে ত্রিপুরাজের সাংবাদিকদের ত্রিপুরাজের সংবাদপত্রের প্রতি ত্রিপুরাজের বেকার যুবকদের প্রতি আপনাদের সেই পরিকল্পনা উদ্যোগ কোথায় আপনাদের সেই ভূমিকা কোথায় ত্রিপুরা থেকে ওই নোট করার জন্য এই ত্রিপুরাকে বাইরের মধ্যে কাজ করবেন কথা বলছি না আমরা সেরকম সংকীর্ণতা বিশ্বাস করি না কিন্তু ত্রিপুরাকে সরকারি দপ্তরে ত্রিপুরাকে বিভিন্ন স্বয়ংসহায়িত সংস্থায় এখানে ত্রিপুরাকে যারা ডুমিসাইল ত্রিপুরাকে যারা জন্মগ্রহণ করেন তাদের অধিকার ত্রিপুরাকে আরো সুচিন করে দিয়ে ত্রিপুরাকে যুবকদের বুকে ছুরি মারা অধিকারটা আপনাদের দেন ত্রিপুরাকে দপ্তরগুলোর সমস্ত সম্পদ লুট করার জন্য অধিকার তো দেয়নি কাজে বন্ধুরা আমরা আহ্বান জানাবো সমস্ত অংশের গণতন্ত্রকে মানুষকে এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে এই ভারতীয় জনতা পার্টি তাদেরকে বলে রাষ্ট্রবাদী শব্দটা সুন্দর রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের প্রতি ভালোবাসা কিসের রাষ্ট্রবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এদেশের শ্রমিক কৃষক যুবক সমস্ত অংশের তারা ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করছে আর ত্রিপুরাকে মধ্যে বসে ত্রিপুরাকে যুব সমাজকে নেশায় ডুবিয়ে দিয়ে তাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে এ রাজ্যের যুবকদের মধ্যে মার ভাঙ্গা বৃহত্তর বানিয়ে এটা রাষ্ট্রপ্রেম রাষ্ট্রবাদী কর্মসূচি এটা পক্ষান্ত রাষ্ট্র বিরোধিতা তার বিরুদ্ধে আগামী দিন আমরা সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ চাই লড়াই চাই তারপরে পার্টি নিয়ে সম্মেলন প্রথম স্থান আরো পার্টি নিয়ে সম্মেলন বেশি আরো থাকবে সামনে বেশি কি করার জন্য গণতন্ত্র পুরোই তিনি মানসাই সেই এলাকা এ রাজ্য সংবিধান অতপ্রায়িকা ও সংবিধান কিভাবে করে আনি গণতন্ত্র কিভাবে করে আনে আপনি কম সাত সালামি আপনি আগামী ও রায়দার সামনে যাবে তিনি সমাবেশ অনুষ্ঠান হেমানো যিনি সিপিআইএম নি যারা তারা সামনে বক্স নিয়ে আপনি স্লাইড বান তিনি লোককে ফোনবা তিনি কখনি খাই অধাগাম সানা গাইও তিনি ত্রিপুরা হও বাসা তাবো বুক বড় ত্রিপুরা সানি বাবু ত্রিপুরা সা হুকুমই লাগাই ত্রিপুরা হানি লাগাই বড় কায়দা করো বড় হামলারো तुम आप लोग नगारिया अब कहाँ ত্রিপুরা সালা हमला करी ত্রিপুরা हमला करी ত্রিপুরা হুকুমরা हमला मारे ত্রিপুরা সামুন नाइखा जमाने कहाँ संसिपियारियम बांधन चंगा बनायो तो ताको ত্রিপুরা हानि बाबू ত্রিপুরা सानी बाबू वो लामानी मिशन तो इलाम नहीं ये ত্রিপুরা हम तो
1400 বছর রক্ষা, 30 বছর কংগ্রেস রাজত্ব রক্ষা, 5 বছর জোট সরকার রক্ষা কংগ্রেস ইউএস, তিনি 47 মাস আইপিএফটি বাই বিজেপি নাম বাস্তবতা ছিল সাংবিধানিক পথে ত্রিপুরাকে ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান হবে। সংবিধান নিয়ে রাজনীতি বিশিষ্ট ত্রিপুরাহানি हमसे कोई नहीं तो किराने लायक रखो संविधान में वो बुलायो वो बेरो हारो पागल नुकुरंग पागल सामने मानसायो शेखजाई हमें तो लंबा पानी को जाति में हम लायो तीसरा होगा खड़े Umayya Dipra Hamtam, Wandi Hamtam, Sikam Hamtam अपने हम करने वाले नालों संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आपने याद रखा है क्या? तो हम लोग तो ऐसी कौन 11 वर्ष कौन खानदा तौल कैसा हम लोग कुमोलों बामफ्रंट कंट्रोल फायदा नहीं बामफ्रंट सरकार एडीसी लो बामफ्रंट एडीसी सिनेया कारण आईपीएफटी एडीसी कंट्रोल जे चुआ चुनी नहीं ini turun एडीसी काम करने का plan saya ini kita satu buku engineer MA pass dokter bekar केवल वो सुनाई कोई लोग राज्य सरकार ने और में गेस्ट प्रोफेसर सुनाया सेंट्रल गवर्नमेंट तो त्रिपुरा की एडीसी सिरिया नॉर्थ ईस्ट की कोस्टा एडीसी बावे जे एम्पावरमेंट हम अपने का फील करने अपने तुम्हारी तो पार्लियामेंट का अब तो tahu sana Tipranen India wow impossible ini IPF ini terlalu oke Tipranen itu impossible है डेटा है करना चाहिए पता संविधान ये होगा अभी खाली Tiprasana हम जाती Tiprasana हम जाती दोनों पक्ष दोनों semua bangsa ini tahu itu bangsa BCP power melakukan BCP ini শাসন দেখি তিনি মাথায় মান্দায়া কুমারী মাইনসিয়া উমানে এই রাজ্য যে আইন করে শাসন করে উমানে আবন করুণানি ভাবে আবন করুণাইয়া কাজে তাপবখরা তিনি পার্টি হইতে बनाई इतनी पूरा चला हम करना है त्रिप्रासना हम करना है त्रिप्राहन हम करना है और ये पूरी लामा शिक्षा ये काम हम करते हो तो बंधुरा আমি আবারো আপনাদের অসংখ্য পুণ্যি জানাচ্ছি যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন চ্যানেলে দেখছেন আজকে এই মাঠে কত লোক এসেছেন তার থেকে আরো 50 কোন লোক বেশি কন্টেন্ট শুনছে আগামী দিন আমরা যেখানে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে এই প্রতিরোধ করে তুলব এই লুটেরারা এরা লুটেটা ধ্বংস করছে এরা পালিয়ে যাওয়ার পথ পাবে না তার জন্য শপথ নিন আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শুনলাম সবাইকে নমস্কার শুভেচ্ছা আমরা জনসমাবেশে এখন বক্তব্য রাখবেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বর্তমান পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড প্রকাশ কারাত। Comrade Prakash Karat is being requested to address the rally.
के आदरणीय अध्यक्ष कॉमरेड अरुण देव वर्मा, हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड मानिक सरकार, हमारे त्रिपुरा राज्य कमेटी के मंत्री कॉमरेड जितेंद्र चौधरी और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज त्रिपुरा के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सम्मेलन के अवसर पर ये महासभा में आए हुए आप तमाम साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आंदोलन के साथ इतने दिनों से दृढ़ता पूर्वक खड़े होने के कारण, लाल झंडे के साथ खड़े होने के कारण मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता संभाली है, तब से लेके हमारे देश के जनतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के जो सेक्युलर ढांचा है और हमारे देश के जो संघवादी ढांचा है, इस सब पर भयंकर हमला हो रहा है। और आज ये हालत हो गई है कि मोदी सरकार के रहते हुए विपक्ष के खिलाफ जो भी आवाज उठाती है इस सरकार के खिलाफ, जो भी अपने स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं, उन सब के खिलाफ दमन और हमला होता है। हमारे देश में ऐसे कानून है जो बनाया गया था आतंकवाद के खिलाफ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कानून आतंकवादी संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये कानून हमारे देश के जो ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता है, किसानों के संगठनों के नेतागण है, जो भी जनवादी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको इस कानून के तहत जेल में बंद करके बिना जमानत के सालों के लिए बंद करके रखते हैं। और यही सरकार हमारे देश की जो केंद्रीय एजेंसीज है, जो सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, सब संगठनों को का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों के नेतागण को गिरफ्तार करते हैं। कल महाराष्ट्र में वहां की सरकार के एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। इसका कसूर यही है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की आलोचना करते हैं।
और ऐसी परिस्थितियों में जनवाद की रक्षा करने के लिए हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तमाम जनवादी और सेक्युलर ताकतों को एकत्रित करके हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी वामपंथी पार्टियां ही सबसे दृढ़तापूर्वक भूमिका अदा कर सकती है और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों को मजबूत करना आज सबसे बड़ी जरूरत है। मोदी सरकार हमारे देश में सांप्रदायिक एजेंडा को पूरी तरह लागू कर रही है। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने के लिए और उनका जो मंशा है कि देश में एक हिंदू राष्ट्र कायम करें, इसके लिए वो नंगे रूप से हमारे देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा नफरत फैला रही है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और वहां की जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही कहता है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के 80% लोग और दूसरी ओर 20% लोग के बीच में लड़ाई है। इसका मतलब वहां ध्रुवीकरण पैदा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। और आज जगह जगह पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में हम देखते हैं कि तमाम अल्पसंख्यकों की जो अधिकार है उसको खत्म किया गया है और ये आरएसएस का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए उसी की ओर वो बढ़ रहे हैं। ये मोदी सरकार अपने आप को एक राष्ट्रवादी सरकार बताती है, लेकिन असलियत में ये सरकार हमारे देश के सबसे बड़े जो पूंजीपति है, हमारे देश के अंबानी और अदानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं के इसमें काम करते हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हमला होने वाला है हमारे देश की मेहनत कर जनता की जीविका पर। जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर कोई रोक लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं है और 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम और 3-4 गुना बढ़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल का दाम है वो एक बैरल के लिए $100 तक पहुंच गया है। सिर्फ चुनाव के कारण अभी यहाँ वो दाम बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन चुनाव होते ही मार्च के अंत तक आप देखेंगे कि अभी जो पेट्रोल का दाम 100 रुपए पर लीटर तक गया था वो 150 रुपए तक जाने वाला है। और यही सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण
हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई रोजगार पैदा नहीं होता है और कोविड की महामारी के बाद जो आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी है जनता के, उसमें सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों का रोजगार नष्ट हुआ है। तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियां की नेतृत्व कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष में जिस तरह किसानों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई की, लाखों किसानों ने दिल्ली को घेर दिया था। एक साल से ज्यादा समय ये संघर्ष चली और उसका नतीजा था कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा और वो 3 काले कानून जो किसानों के खिलाफ थे और कॉर्पोरेट के पक्ष में थे, उसको वापस लेना पड़ा। तो ऐसी लड़ाइयां आने वाले दिनों में हमें लड़ना पड़ेगा। मोदी सरकार के जलवाद पर हमले के खिलाफ, मोदी सरकार के कॉर्पोरेट के पक्ष में और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और मोदी सरकार के जो सांप्रदायिक हिंदुत्व का एजेंडा है, तो ये हमारे राष्ट्रीय पैमाने पर जो हमारे सामने एक काम है, जब हम त्रिपुरा में देखते हैं तो यहाँ भी भाजपा की सरकार है और ये सरकार वही जन विरोधी नीतियों को अपनाते हैं। ये सरकार जिस तरह पिछले 4 वर्षों में जहां जलवाद पर हमला किया, जंगली अधिकारों पर हमला किया, हमारी पार्टी और वामफ्रंट के खिलाफ दमन और अत्याचार किया, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह कोशिश करती आई है। और अभी तक आपने देखा है इस पिछले 4 वर्षों में जितने भी हमले हुए हैं, जितने भी दमन हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए लाल झंडे के साथ खड़े होकर हजारों हजारों हमारे साथी और मेहनत कर जनता खड़े हैं। और उसका सबूत यही है कि इतने बड़े तादाद पर आज आप इस रैली में आए हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामफ्रंट के समर्थन में। हम इस सम्मेलन में त्रिपुरा के जनता के, त्रिपुरा राज्य के जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर विचार करेंगे और एक वैकल्पिक प्रोग्राम तय करेंगे त्रिपुरा के जनता के कल्याण के लिए, त्रिपुरा के विकास के लिए। जो पहले वर्षों के लिए वामफ्रंट की सरकार ने यहाँ जो विकास का काम किया था, जनता के लिए कल्याणकारी काम किया था, शिक्षा और चिकित्सा के लिए जो प्रयास किया था, तो सबको किस तरह आगे ले जा सकता है। और इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते समय हम अपने विकल्प को भी पेश करेंगे। आपको पता होगा कि लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई वामपंथ आज बचा नहीं है, लेकिन केरल में वामपंथ की सरकार है। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है और उस सरकार ने करके दिखाया है। अभी जो कोविड महामारी के समय में सिर्फ केरला एक ऐसे राज्य था जहां की पूरी जनता के लिए सरकारी अस्पतालों में, सरकारी चिकित्सा केंद्रों में मुफ्त में चिकित्सा दी गई। किसी को भी एक पैसा खर्च
खर्च नहीं करना पड़ा अस्पतालों में, क्योंकि वहां ऐसे चिकित्सा की व्यवस्था है कि सबको फ्री ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये हमारी वैकल्पिक नीतियां। तो उसी तरह त्रिपुरा में यहाँ जो उपजाति है, गैर उपजाति है, जिन्होंने दशकों तक हमारे वामपंथ के नेतृत्व में यहाँ मिल के काम किया और आपसी भाईचारा के साथ त्रिपुरा में विकास का काम किया, वही ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, उपजाति और गैर उपजाति जनता, उनकी मेहनत के जनता की एकता को कायम रखेंगे। वामपंथ ही ये काम कर सकता है और त्रिपुरा को आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए मैं आज आप जो बड़े पैमाने पर आए हैं, जितने भी 4 वर्षों में आपने दमन सहा है, जितने भी हमारे साथियों पर हमला हुआ है, हमारे दफ्तरों पर हमला हुआ है, हमारे साथियों का खून किया गया है, इस सब के बावजूद यहाँ के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ जिंदा है, जिंदा रहेंगे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। यही संदेश लेके हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। এই সুবিশাল সমাবেশে এখন বক্তব্য রাখবেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি। তাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা সবাইকে আমাদের শুভেচ্ছা। আজকে আমি বাংলাতে বলতে পারবো না, কিন্তু যখন আমি নির্বাচনের সময় এসলাম বললাম কি আগামী আগে আসবো তো আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো যে বাংলাতে বলতে, কিন্তু যেরকম परिस्थिति आज के जेरकम हमारे सामने ये चैलेंजेस, ये चुनौतियाँ जो है उसको सामना करने के लिए ये जरूरी है कि संक्षेप में मैं आज आपके सामने हिंदी में बोलूँ। सबसे पहली बात यह है कि मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी देश के अंदर हमारे पार्टी की तरफ से आप सबको हमारी क्रांतिकारी लाल सलाम की आज इस आतंक के समय में भी इतने बड़े तादाद में आप इस मैदान में आए हैं, ये हमारे लिए आप सबके हमारे आशीर्वाद। पिछले जब से ये भाजपा आई 22 हमारे कॉमरेडों की हत्या हुई। पिछले हमारे पार्टी की कॉन्फ्रेंस के समय से लेकर आज तक 17 हमारे कॉमरेडों की हत्या हुई। अपने ऑफिसर्स को जला दिया, ऑफिसर्स को नष्ट किया, कॉमरेडों के घरों के ऊपर हमला किया, धमकियां दी, चुनाव लड़ने से, नॉमिनेशन फाइल करने से भी रोककर, वो धमकी देकर उनको जो है बिठा कर कहते हैं कि वो जीत गए भाजपा। ये सब आतंक पर हमला होने के बावजूद वो समझते थे कि अब फिर लाल झंडा फिर वापस नहीं आएगा त्रिपुरा में और लोग कोई वामपंथियों के साथ नहीं रहेंगे। वो भूल जाते हैं ये लाल झंडा इसलिए लाल है क्योंकि हर इंसान के अंदर जो खून बहता है, हर हमारे शहीद जो होता है, इसका खून जो बहाया उन लोगों ने, हमारे दुश्मन, उन सब लोगों के खून का रंग लाल होता है। तो इस लाल झंडे को कोई नहीं मिटा सकता जब तक इंसान के अंदर लाल खून बहता है। याद रखिए, हम वो है कम्युनिस्ट, हम वो है कम्युनिस्ट जो मौत से डरते नहीं, क्योंकि हम मरकर भी मरते नहीं, हम जिंदा रहेंगे और हमारे दुश्मनों को लड़कर उनको जो है हम हराएंगे। और यह है त्रिपुरा की परंपरा। कहा जाता था एक छोटा सा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक प्रदेश है, उसके अंदर क्या कर सकती है वामपंथी और ये लाल झंडे। लेकिन हमारे त्रिपुरा के अंदर जो वामपंथी सरकारें रही,
पहले कॉमरेड उपेंद्र चक्रवर्ती, उसके बाद कॉमरेड दशरथ देव, उसके बाद कॉमरेड मानिक सरकार, इन सरकारों की उपलब्धियां सरकारी आंकड़ों को बता दिया। ये आप देखोगे सबसे पिछड़े हुए निरक्षर प्रांत के अंदर अगर कोई एक ऐसा प्रदेश है आज अपने भारत के अंदर जो केरला को टकराव देता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़ाई, सबसे ज्यादा लोग जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो बराबर की अगर केरला की कोई और प्रदेश है अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, वो सिर्फ त्रिपुरा है। और ये आपके वामपंथी सरकारों की उपलब्धि है। ना सिर्फ ये भूमि सुधार, अरे राष्ट्रीय आंदोलन के समय से त्रिपुरा की परंपरा रही है कि देश की आजादी के लिए त्रिपुरा को भी जोड़ते हुए अपने हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए उस समय जब देश के अंदर बंटवारा हो रहा था, त्रिपुरा को भारत के साथ रखने के अंदर ये वामपंथी आंदोलन और यहाँ पर उपजाति लोगों के नेतृत्व देते हुए वो आंदोलन, उसका बहुत बड़ा भूमिका रहा। एक क्रांतिकारी विरासत है त्रिपुरा के लोगों की। आप जो है उसके वारिस हो। अब ये क्रांतिकारी इतिहास को अगर आज बरकरार रखना है तो ये चैलेंज देना होगा अपने सरकार को और भाजपा को। अगर आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराओगे बिना हिंसा के और जनतांत्रिक तरीकों से, आइए आप रखिए अपनी बात जनता के सामने, हम रखेंगे अपनी बात और जनता को चुनने दीजिए कौन वो चाहते हैं कौन नहीं चाहते। लेकिन ये हिंसा से खत्म करके सीधा और जनतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िएगा तो ये निश्चित है कि भाजपा हारेगी, वामपंथी जीतेगी और फिर से वामपंथी सरकार जो है यहाँ पर बन पाएगी। अगर वो माहौल लाना है तो आज इस हिंसा के खिलाफ लड़ना है, वो माहौल लाना है। हम लड़ेंगे इनको जनतांत्रिक तरीके से, हम लड़ेंगे हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखेंगे, हम लड़ेंगे हमारे संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार को बरकरार रखेंगे। और इनका पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है? इनका पूरा का पूरा उद्देश्य उसी संविधान को ध्वस्त करे, उसी संवैधानिक अधिकारों को खत्म करे और लोगों के सामने हिंसा, नफरत और उसके आधार पर डराकर लोगों को अपनी समर्थन में हासिल करने की कोशिश करे। इसके बावजूद ऐसा क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है पंजाब में, क्या हो रहा है बाकी प्रांतों में जहाँ पे चुनाव हो रही। इससे पहले चुनाव हुए थे आपके तमिलनाडु में, आपके केरला में, आपके बंगाल में और सब जगह बीजेपी को हारना पड़ा। और इस बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर संकेत यही मिल रहा है। प्रधानमंत्री बहुत यात्रा कर रहे हैं, बहुत सरकारी पैसे से सरकारी ट्रेन लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो चुनाव प्रचार का क्या है मुख्य उद्देश्य? आज देश के अंदर बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। हमारे देश के अंदर नौजवान जो हमारा देश का भविष्य है, इस नौजवान को अगर हम आज नौकरी देते और देने के लिए देश के अंदर साधनों की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, वो जो है निवेश करे, जो सड़कें चाहिए हमें, जो हमारे लिए सिंचाई की जो सुविधा चाहिए, जो सब सुविधा चाहिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको बनाए। करोड़ों में हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और वो नौजवान जब अपना धंधा जो है खर्च करने लगेगा, ये बंद पड़े कारखाने सब खुलने लगेंगे, आर्थिक विकास भी होगा, लोगों की तरक्की भी होगी और लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? देश की जो जितने भी साधन है उसकी लूट मची हुई है, सब दे देते हैं। जो नारा जो लगा है वो है हमारे प्रधानमंत्री के जो बड़े बड़े हमारे देश के पूंजीपति है, सब चीज हमारे देश के अंदर उनके हाथों में जाता है। सब एयरपोर्ट या उनके एक दोस्त के हाथ, सब हमारे पोर्ट यानी जो बंदरगाह पानी के साथ जुड़े हुए पोर्ट है वो सब उन्हीं के हाथ में जाता है।
देश के अंदर पूरा टेलीकॉम, अपना मोबाइल फोन, उसका पूरा का पूरा कब्जा एक करना चाहता है। पेट्रोल के ऊपर, तेल के ऊपर कब्जा वो दूसरा करना चाहता है। यानी पूरी देश की संपत्ति के ऊपर आज लूट मची हुई है और ये लूट जो है वो बेचा जा रहा है आज हमारे बड़े पूंजीपतियों को, जो हमारी संपत्ति है। आज जो निजीकरण हो रही है हर संस्था की देश के अंदर, लाखों के तादाद में हमारे देश के अंदर मुलाजिम और हमारे देश के अंदर मजदूरों की नौकरी की चटनी हो रही है पब्लिक सेक्टर के अंदर। और ये पब्लिक सेक्टर आज मोदी साहब को और भाजपा को ये बताना पड़ेगा बड़ी जोर से, भाई देश का पब्लिक सेक्टर, देश की आर्थिक संपत्ति का मालिक देश का जनता है। सरकार जो आता है, प्रधानमंत्री जो आते हैं और जो जाते हैं, वो प्रधानमंत्री और वो सरकार सिर्फ मैनेजर है, संपत्ति के मालिक नहीं है। अगर कोई मैनेजर बिना मालिक के अनुमति के संपत्ति बेचना चाहता है तो जो आज जो लोग हैं, जिसके जो मालिक है इस संपत्ति के, वो लोग इस मैनेजर को बदलकर नया मैनेजर ले आएंगे। और ये बदलाव करना जो है आज जरूरी है त्रिपुरा के अंदर और भारत के अंदर। तो लोगों की समस्याओं के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री श्री प्रसाद, सिर्फ जो बोलते हैं वो बोलते हैं नफरत पैदा करना। कहीं पर हो गया हिजाब, कहीं पर हो गया 80% और 20% हिंदू मुसलमान के बीच में, और हिंदू मुसलमान के बीच में ये दूरीकरण करते हुए, ये नफरत फैलाते हुए कभी हो जाता है शमशान घाट और कब्रिस्तान, और कभी हो जाता है सब भाजपा के राज्यों के अंदर ये कानून बना दिए गोरक्षा के नाम पर या लव जिहाद के नाम पर, किसी न किसी बहाने से बंटवारा करो, फूट डालो लोगों के बीच। ये फूट ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में ही नहीं, आज ये फूट हर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। हमारे दलित भाइयों के ऊपर देखो, भाई और बहनों के ऊपर देखो अत्याचार, जिस तरीके से घोर अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा। दलित हमारी बहन के साथ जो 20 साल की मिलेगी, उसके साथ बलात्कार करके उसका खून कर देगा। हर बार उस तरीके से अत्याचार जो है हमारे दलितों के ऊपर होता है। हमारे मुसलमान भाई बहनों उनको किस तरीके से उनके ऊपर इस नफरत और हिंसा फैला रहे, जिसके चलते हुए कि भारत के नागरिक है या नहीं है, उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और इसका नेतृत्व कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। आज हमारे देश के अंदर आदिवासियों के ऊपर, उपजातियों के ऊपर लड़ के इस लाल झंडे ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, यानी आपके जंगलों में रहने की अधिकार उपजातियों की, उसके लिए कानून बना। ये गर्व की बात है लाल झंडे की कि सबसे ज्यादा पट्टा जो दिया गया है पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा पट्टा इसका कानून के चलते हुए दिया गया है, वो दिया गया है आपके त्रिपुरा में वामपंथी सरकार के चलते हुए। और आज वो अधिकारों को ध्वस्त करने पे लगे। हजारों एकड़ हमारे जंगलों को आज जो है बेच रहे हैं विदेशी पूंजी के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए, ताकि वहां पर वो कोयले का और बाकी चीजों का ढलान करेगा, ये करेंगे। इसके चलते हुए लाखों की तादाद हमारे उपजाति और आदिवासियों को अपना घर छोड़कर वो जो है भड़कना पड़ रहा है, यानी दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, इन सब पे जो अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, इनके बारे में क्या है प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के सुझाव, किस तरीके से समस्याओं का हल करेंगे, उसके ऊपर एक भी बात नहीं। पूरी की पूरी बात होती है कि एक ध्रुवीकरण पैदा करो, ताकि एक सांप्रदायिक वोट बैंक का जो है उसको जो है मजबूत करे। सबसे गंदा आज कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है देश के अंदर, वो है भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री। और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए लोगों की एकता को तोड़कर वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भारत और भारत के संविधान को ही वो ध्वस्त करने जा रहे, ध्वस्त किए जा रहे। और सब संस्थाओं के ऊपर आज पहले क्या होता था,
यहाँ पर जो निर्वाचन होते थे आपके त्रिपुरा के अंदर या कहीं पर भी देश में, कोई भी गलत भाषण अगर किसी ने बोला निर्वाचन में, इलेक्शन कमीशन फौरन उस पर कार्रवाई लेता। आज नफरत भरा हुआ भाषण जो है कई सारे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारे अल्पमत के समुदाय के खिलाफ, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के खिलाफ, लेकिन एक पर भी कार्रवाई नहीं लेती है। आपके कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पे 3 साल से पड़ा हुआ है कि वो 370 धारा खत्म करके जो जम्मू कश्मीर को दस्तक दिया था उस राज्य को क्यों किया? क्योंकि एकमात्र मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है पूरे देश के अंदर, तो उसको जो है आप जो है उसको मतलब वो देश है। और ये केस पड़े हुए हैं नागरिकता के कानून के ऊपर, या वो लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आज जो एक राजनीतिक भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के सिलसिले में लाखों करोड़ों रुपए भाजपा ने इकट्ठा कर दिया जो खर्च करते हैं यहाँ पर आपके चुनाव के समय पर। ये सब के सुनवाई पार्लियामेंट को ही ठीक ढंग से चलने देते, अपने बहुमत के हिसाब से कानून बना देते हैं। यानी संविधान और संविधान के संस्था इन संस्थाओं को खत्म करने का पूरा तो आज ये समय आ गया। इस सवाल को लेकर आज हमें भारत को बचाना है तो ये मोदी सरकार को दिल्ली की गद्दी से उतारना होगा, वरना हमारे भारत और संविधान को हम नहीं बचा पाए। आज त्रिपुरा को बचाना है, त्रिपुरा को बचाना है और त्रिपुरा के अंदर जो भी आपने उपलब्धियां आपकी रही है वामपंथी सरकार के चलते हुए, उन उपलब्धियों की रक्षा करनी है आज। तो आज भाजपा की सरकार को त्रिपुरा से हटाकर फिर से वामपंथी सरकार ले आने के अलावा और कोई चारा नहीं है त्रिपुरा के लोगों के सामने, और उसके लिए आज प्रतिबंध है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए आज जो यहाँ पे जो हो रही है हमारी राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 2 दिन का सम्मेलन शुरू हो रही है, कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में ठोस रूप से किस तरीके से आज त्रिपुरा के अंदर ये जो चैलेंज है हमारे सामने कि जो कभी सुना नहीं त्रिपुरा उपजाति और आपके मेजॉरिटी आपके बाकी लोगों के बीच में जो एकता, जो वामपंथी जो बना था, जो सुरक्षा जो हमारे अल्पसंख्यकों के लिए है और खासतौर से मुसलमान भाई बहनों के लिए है, वो सुरक्षा की हालत आज इस सब को ध्वस्त किया जा रहा है। अरे आज भी बांग्लादेश में अगर आप चले जाएंगे, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए अगर किसी का नाम वो लेते हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना वो खुद आई थी यहाँ आपके आगे चला, क्यों? ये आपको आप सबको धन्यवाद बोलने के लिए कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए किस तरीके की समर्थन त्रिपुरा के लोगों की और त्रिपुरा की सरकार उस समय की वामपंथी सरकार को मिला। आगे मिली थी तो हमारी सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, यानी वो मुसलमान हिंदू की दायरा कमी इस राज्य में उस तरीके से बंटवारा कमी नहीं। हम है तो हम इंसानियत का एक ही कायदा होता है इंसान का, वो है इंसानियत। और वो इंसानियत जो भी आपकी मतलब है, इंसानियत के आधार पर सरकार को और प्रशासन को चलना और उस तरीके की वातावरण लाना है। तो आपको आज फिर से जुटकर इतनी बड़ी तादाद में जो आप आए, ये अपने आप में संकेत है। अभी तो हमने जितेंद्र जी हमें बता रहे थे कि कई हजारों की तादाद में शादी जो आना चाह रहे थे रैली, वो अभी भी आने नहीं दिया जा रहा है। उसको रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में, बसों में और बसें जो किराए पे भी लिए थे उन सबको जो है कैंसिल किया जा रहा है। ये सब होने के बावजूद, डराने के बावजूद, धमकी देने के बावजूद, हिंसा के बावजूद इस तादाद में जो आप यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि त्रिपुरा की जनता आज जुड़ता है उनके अंदर, आज निश्चित कर चुकी है कि आज त्रिपुरा के अंदर ये हिंसा और नफरत की वातावरण नहीं चलेगी। आज फिर से जनतांत्रिक आधार पर
संवैधानिक व्यवस्था को पुनः कायम करेंगे और उसके लिए भाजपा को हटाएंगे और वामपंथी सरकार को ले आएंगे। ये जो विश्वास जो आज इस रैली में जो नजर आ रही है, ये प्रेरणा है पूरे हिंदुस्तान के लिए। सब जगह लोग लड़ रहे हैं, हर चुनाव के अंदर आज लोग लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और जो बर्बादी जो की जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था की, लोगों की जिंदगी के साथ, और आज तक खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर 50,000 रुपए हर परिवार को देने की बात के लिए सरकार को मानना पड़ा, जो पहले नहीं मानती थी। जहाँ उस परिवार के अंदर कोई इस कोरोना कोविड महामारी से कोई उस परिवार के अंदर जो जिनकी जान चली गई, उन लोगों को 50,000 रुपए मिले। आज क्या कर रही है सरकार? कितने लोग मरे हैं अपने देश के अंदर, उसको सही ढंग से नहीं दिखा रही है ताकि ये पैसे बचा ले। ये है सरकार की इंसानियत। कितने मरे उसका सही आंकड़ा आज तक ये सरकार देती है। आंकड़ा देती है कुछ 5-6 हजार की और बाकी है 50,000 की। जैसे उनकी सरकार गुजरात में है, वो तकरीबन 5,000 से ज्यादा 5,000 की असली आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन 80,000 के करीब जो है ये कॉम्पनसेशन बाकी। तो इस तरीके की सरकार जो देश की संपत्ति और लोगों को राहत देने के लिए वो अपने सरमाएदारों को, अपने पूंजीपतियों को देश को लूटने के लिए सुविधा दे रही है। विदेश में पूरी की पूरी अमेरिकन साम्राज्यवाद के जुमशेदू बनकर, एक कठपुतली बनकर विदेशी राजनीति करते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो गया है यूक्रेन। वहां पर असलियत के आधार पर चलने के लिए फिर दबाव, अमेरिका के दबाव, यानी सरकार एक तरह से अमेरिका की दबाव और प्रधानमंत्री को मतलब वो एक किस्म से वो बातें भी तो उन्हीं के अंदाज में कहते हैं। भारत के अंदर गोडसे की जय और विदेश जाते हैं तो गांधी जी की जय। तो विदेश में गांधी जी, भारत के अंदर गोडसे जी, और ये है उनकी असली राजनीति। असली राजनीति ये है और इसके चलते हुए अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की एकता अखंडता, देश के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, इन सब के ऊपर वो बड़ा होता है। तो हमारी अपील आप करते यही कि विप्लव में ये 2 दिन में जो भी निर्णय लें, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। उसको आप सभी लोग स्वीकार करते हुए आने वाले दिनों में जनता की